Hello students, welcome to Food Nutrition and Dietetics channel. So today we are going to start with unit 1, that is food and nutrition basic concept. So without any delay, let's start with it. Chapter 1, nutritional status and primary healthcare. Food. Food is a basic necessity. Food is any substance consumed to provide nutrition support for an organism. It is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. So ये बेसिकली हमें बता रहा है कि फूड क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है और उसके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें मिलती है। और वो भी दो ओरिजिन के हो सकते हैं, या तो एनिमल बेस्ड जिसे हम नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं और एक नॉन एनिमल बेस्ड जिसे हम वेजिटेरियन भी बोलते हैं। तो उसमें ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स इंक्लूडेड रहना चाहिए, तब हम उसे बोल सकते हैं कि इट्स अ प्रॉपर डाइट और फूड। फूड इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली बायोकेमिकल्स विच आर मेनली डिराइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यस, वही बोल रहा है वो कि इट इज़ मेनली डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल बेस से ही हम फूड डिराइव करते हैं अपना। There are three main groups of constituent in food: carbohydrate, proteins and fats derived of these. The essential substances contributed by our food is called nutrients. If these nutrients are not present in our food in sufficient amount, the result is ill health and some cases can even death. Food also contains many substances which are non-nutrient. Example: coloring, flavor substances in food. Food is therefore complex mixture of different nutrients and non-nutrients. सो ये पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि फूड में ना ही खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होना ज़रूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी सफिशिएंट अमाउंट में उसमें न्यूट्रिएंट्स होना, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होना। और नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फूड. Food consists of various nutrients. These nutrients can be classified into 5 major categories: proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Food also has social and psychological function in addition to physiological one. So let's see what are the functions of food. Physiological functions. The physiological functions performed by food are the energy giving, body building, protective and regulatory functions. The energy giving function of the food is basically performed by the two nutrients categorized: carbohydrates and fats. This is why the nutrients are also referred as the body fuels. Food is also needed for growth and repair. For both growth and repair, proteins are necessary. The other major physiological function performed by food are protective and regulatory functions. Let us talk about the meaning of the term protective first. So इसमें हमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन बताया गया है फूड का, जो कि हमें मेजरली एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी गिविंग इट्स इज वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द फूड आइटम्स. और ऐसे हम बॉडी फ्यूल भी बोलते हैं. ऑफकोर्स अगर फूड ही खा के हमें एनर्जी आती है तो ऑफकोर्स उसे बॉडी फ्यूल ही बोलेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आर ग्रोथ एंड रिपेयर. ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी काफ़ी ये ज़रूरी फूड चीज़ है. ये सब तो बेसिक चीज़ें आप सब जानते होंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. Here protective refers to the role in prevention infection by ensuring proper functioning of body system responsible for fighting infection. Yes, यहाँ प्रोटेक्टिव का पर्सपेक्टिव मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि हम वॉर में जा रहे हैं तो वो प्रोटेक्ट करेगा हमें. इसका मतलब है कि वो हमें वेरियस इन्फेक्शन से और पैथोजन से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और उनसे फाइट करने के लिए सफिशेंट इम्यून फंक्शन बनाता है. The regulatory function mentioned earlier refers to the role in controlling body processes. यस, और रेगुलेटरी का मतलब वही हुआ कि वो हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब हार्ट बीट नॉर्मल रखना, वो सब मेजर बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना. सेवरल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी सच एज बीटिंग ऑफ द हार्ट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस इज कंट्रोल्ड. दिस इज अचीव्ड बाय सर्टन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज इलस्ट्रेटेड ऑफ देयर regulatory functions. Vitamins, minerals and proteins contribute substantially to both protective and regulatory functions. So yes, ये पैराग्राफ भी वही बात कर रहा है कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन जैसे कि हार्ट बीटिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इन सब को कंट्रोल करता है एंड इट हमें अचीव करने करता है रेगुलेटरी फंक्शंस को. फर्दर विटामिन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि फूड विटामिन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी रोल में भी यूज़ करता है. एंड वाटर तो आपको पता ही है, इट्स 70% ऑफ आवर बॉडी वाटर के बेसिस पे रहता है. सो इट्स ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सोशल function. Food and eating has significant social meaning. Sharing food with any person implies social acceptance. When you share a meal with anyone else, you are expressing your acceptance to friendship and respect for person.
food is an integral part of festivity anywhere in the world. So yes, it has also social meaning भी है. मतलब आप अगर किसी के साथ फूड शेयर कर रहे हो तो आप उसे सोशली एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अपना फ्रेंड बना रहे हो. दैट्स ऑल इट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट. Food also has a specific significance in meaning of the religious context. Contains food items such as fruits, sweets, coconut are offered to the diet in temples. Often, sweets are prepared in temples and gurudwaras and distributed to devotees as benediction of prasad. Food thus becomes an integral part of social and religious life. और yes, हम जो जानते हैं मंदिर वगैरह जाते हैं तो उधर हमें प्रसाद मिलता है, स्वीट्स मिलते हैं, कोकोनट्स वगैरह दिया जाता है, और गुरुद्वारा में लंगर वगैरह लगते हैं. तो हमें पता है कि उनका सोशल इंपॉर्टेंस क्या है और सोशली उसको कैसे हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. We all have emotional needs such as need for security, love, and attention. Food is one of the way through which these needs are satisfied. Food is also closely allied to our emotions. Food often serves as reward. One of the other hand, certain food becomes associated with sickness such as khichdi. This type of food is generally eaten when the person suffers from fever or may therefore associated with pleasant feeling. तो यस, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी है फूड का. वो हमारे जैसे कि हम काफ़ी, अगर हम हैप्पी रहते तो ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ाज वगैरह खाते हैं, तो वैसे, और अगर हम सैड रहते तो फिर कुछ भी खा लेते वैसे. पर मोर स्पेसिफिकली हमारे इमोशंस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कौन से फूड पसंद है. और जैसे कि हमारे सिकनेस, यहाँ एग्जांपल दिया कि अगर हम सिक है तो हमें मेजरली उतना हेवी डाइट लेने की आदत नहीं रहती. हम कम खाना खाते और थोड़ा खिचड़ी टाइप खाना करते ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो, बाकी फंक्शंस प्रॉपरली फंक्शन करें. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज स्पेसिफिक डिसिप्लिन with food as a major focus of interest. It is defined as the science of food, the nutrients and other substances therein, their action, interaction, and the balance of relationship in health and disease. The process by which organism ingest, digest, absorb, transport and utilize nutrients is and dispose of their waste products. तो यस, ये डेफिनेशन दिया गया न्यूट्रिएंट्स का. अगर आप चाहे तो ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमें बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या है डेफिनेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द बॉडी नीड्स ईच न्यूट्रिएंट इन स्पेसिफिक अमाउंट. यस, ऑफ कोर्स हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक अमाउंट में लगते हैं. सम आर needed in relatively larger amounts, the micromolecules, and a smaller amount in micronutrients. Each nutrients play a significant role in the body and balance should be maintained. The term balance means the nutrient needed by the body should be provided in the right amount and proportions. Yes, हमें फूड मेजरली क्लासीफाइड है. मैं दो टाइप में, आपको पता ही होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में लगते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटीज में लगते हैं, और उनका बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड इन द बॉडी इन सुटेबल अमाउंट्स. दीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. Chemical substances obtained from food are used in body to provide energy, structural material, regulate agents to support growth, maintenance, repair of the body tissue. Nutrients may also reduce the risk of some degenerative disease. ये वही बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में रोल क्या है, क्या करता है वो. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंक्लूडेड है, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो सब रहता है, और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल रेगुलेट करता है अपने बॉडी को, मेंटेनेंस करता है, बॉडी रिपेयर वगैरह में वो यूज़ होता है. So next is, let's study different aspects of nutrition. Social and cultural aspects of eating. Food has a special meaning in food and cultural context. Our ancient Vedic tradition emphasizes food as a life giver. It further attributes specific qualities of specific food. It is important to keep a person's socio-cultural background in mind whenever we talk improving or modifying food related practices. तो पहला है सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जिसमें हम फूड को हमारे एंशियंट वैदिक ट्रेडिशन में लाइफ गिवर माना जाता था, और उसमें पर्सन को सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को माइंड में रखते हुए इम्प्रूव, मॉडिफाइंग रिलेटेड प्रैक्टिसेस वगैरह किए जाते थे. और हमें पता है कि मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, तो वो ये हमारे एंशियंट वैदिक ट्रेडिशंस है जो कि फॉलो किया जाता था. नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी ऑफ ईटिंग. The individual reaction to food and to the people around us have a significant physiological influence on the eating pattern. Many factors influence our choices of food, such as advertisement and attitude
ऑफ आर अदर पीपल अराउंड अस। यस, ये वही बता रहा है कि हमारे फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन कैसे होता है फूड के तरफ। जैसे हम अगर टीवी देख रहे रहते तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते हैं तो हमें मन कर जाता है खाने के लिए। तो दैट्स ऑल आर फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट, मतलब फूड के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। और हम फिजियोलॉजिकली जैसे मन में हम अगर किसी खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है और हमें भूख लगने लगती है। सो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग। Next is the economics of food. Food cost money. It must be within the reach of the people and it must be equitably distributed to all sections of the population. The availability of food and its proper distribution is a great importance. It is coordinated efforts of planners, farmers, suppliers and consumers of food products to ensure equitable distribution of food products. So ही इकोनॉमिकली भी पर्सन को थोड़ा रहना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खाना कैसे खरीदोगे। सो इट्स ऑल्सो इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आप फाइनेंशियली भी इतना कैपेबल हो कि आप अपने डेली नीड्स को रीच कर पा रहे हो, तभी आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। ये हमें चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया कि किन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। पहला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर एनर्जी गिविंग फूड दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्चेस एंड फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली हमारे एनर्जी गिविंग फूड आइटम में आता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसमें फूड आइटम्स इंक्लूडेड है ब्रेड, राइस, चपातीज, पोटैटोज, बनानाज एक्सेट्रा। तो हमें पता है ये कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी गिविंग है। नेक्स्ट फैट्स, द ग्रुप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। यस, फैट्स भी ऑफकोर्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट ऑल्सो फंक्शंस इन वेरियस थिंग्स लाइक अगर आप काफ़ी कम जैसे कि काफ़ी थिन पर्सन्स रहते हैं तो उनमें फ़ैट का क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है। तो हमने देखा होगा कि वो लोग थोड़े ना उनको ठंडी से ज़्यादा ये प्रोन रहते हैं, मोर प्रोन टू द कोल्डनेस। तो ऑफकोर्स फैट भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता ही होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हार्मफुल होता है, बट लोअर लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रहना चाहिए। तो इट इंक्लूड्स फैटी मीट्स एंड फिश, चीज़, बटर, एवोकाडो, nuts and seeds, chocolate, etc. Next is protein. Major structural part of the body cells composed of nitrogen containing amino acid, particularly rich in animal food. So proteins हमें पता है, proteins को भी building blocks of our body भी बोला जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे मसल्स वगैरह में दिखते हैं। सो प्रोटीन ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इंक्लूड्स मेजरली उसमें नॉन वेज मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि एग्स, मीट, पल्सेस, मिल्क, fish, etc. Next is minerals and vitamins. Non-caloric inorganic nutrients found in a wide variety of foods. Minerals and vitamins are वही उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते और उसको बैलेंस क्वांटिटी में हमारे बॉडी में रहना चाहिए। अगर उनकी डिफिशियंसी होगी तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर से सफ़र कर सकते हैं और उसका एक्सेस भी हमारे बॉडी पे काफ़ी बैड इफेक्ट्स देते हैं। सो वो मेजरली फ्रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ। According to WHO, health is defined as the state of complete physical or mental, spiritual and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. So ये हमें health का definition दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। आप सब चाहो तो इसे नोट कर सकते हो क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Health is a positive state of complete well-being and not just the absence of disease. One dimension which is also gaining prominence is spiritual health. Let us now examine the dimensions of health. So हमें हेल्थ के बारे में बता रहा है। हेल्थ ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि हम हेल्दी पर्सन। हेल्दी मतलब क्या? तो हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप खाली ठीक से चल पा रहे हो, नॉर्मल डाइट ले पा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली टोटली फिट हो तब आप हेल्दी बोले जाते हो। सो उसके काफ़ी डायमेंशंस दिए गए हैं तो हम पढ़ते हैं एक एक करके। Physical health. The physical dimension of the health familiar to us. Physical health is easy to detect and describe. A person is physically healthy if he or she looks alert, is responsive, energetic and vigorous. Yes, physical health तो हमें पता ही है कि अगर आप physically fit हो, easy to detect, describe। अगर person physically healthy रहा और looks alert दिखता है, responsive रहता है, energetic दिखता है, vigorous रहता है, वो physical health हुआ। Mental health. Mental health is more complex concept than physical health. It implies freedom for internal conflict and a good capacity to adjust in the situation of people. Physical and mental health are interrelated. Physical ill health can lead to mental ill health. The reverse can also happen. तो ये mental health भी of course important है। mental health मतलब क्या? आप अंदर से मोटिवेटेड हो या नहीं, आप ठीक से डाइट लेते हो कि नहीं, और आप अगर आप
किसी फूड को अवॉइड करते हो तो वो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अवॉइड नहीं करना है, आपकी गुड कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और फिजिकल हेल्थ और हमें डिपेंडेंस भी पता है कि अगर आप मेंटली हेल्थ इल हो तो वो फिजिकली इल भी बना देगा आपको, इसलिए मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। An individual who recognizes his or her obligation towards other members of society and is able to relate to other people around him or her can describe as socially healthy. It is important to realize the goals of social health if mental health has not been achieved. Similarly, a person who does not enjoy physical health would find it difficult to achieve social health. Social health भी वही है, socially अगर आप socially कैसे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, पीपल्स के साथ बात करते हो कि नहीं, आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वो डाइट वगैरह फॉलो करना चाहिए अच्छे से, आपको मतलब आइसोलेट नहीं होना है। इन शॉर्ट वी कैन से एंड अ पर्सन वुड, अगर आप ये भी बता रहा है कि अगर आप सोशली इल हो तो वो आपको फिजिकली इल भी बना देगा। सो वी शुड फोकस ऑन सोशल हेल्थ ऑल्सो। स्पिरिचुअल हेल्थ। Spiritual health is more difficult to define. The concept is doing good and not for harming there, or believing in the basic forces of goddess and justice, whether or not worshipped God, of recognizing the needs of other and trying to fulfill them. तो spiritual health मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि भगवान पे भरोसा, भगवान गॉड पे भरोसा। अगर आपको गॉड पे भरोसा है तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी हो। Primary healthcare. Primary healthcare is a whole of a society approach of health and well-being, centered on needs and preferences of individual, families, communities. It addresses the broader determinants of health and focuses on comprehensive and interrelated aspects of physical, mental, and social health well-being. सो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? अगर आप हेल्दी हो, वेल-बींग हो, सेंटर्ड ऑन प्रेफरेंस देते हो इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, और आप फोकस करते हो अपने हेल्थ पे, फिजिकली, मेंटली, सोशल अगर हेल्दी हो तो आप गुड लाइफ जी सकते हो। इट प्रोवाइड्स होल पर्सन केयर for health needs throughout the lifespan, not just for a set of specific disease. Physical health care ensures people receive comprehensive care ranging from promotion to prevention to treatment, rehabilitation, palliative care, and close feasible people's everyday environment. So प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर क्या करता है कि आप रिसीव करो सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह। अगर आप ठीक है अच्छे से डाइट ले रहे हो, लेकिन काफ़ी टर्म्स में ऐसा भी हो जाता है कि हम इल पड़ जाते हैं, तो उस वक्त हमें प्रिवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर करता है कि आप ट्रीटमेंट से लेके रिहैबिलिटेशन तक प्रॉपर फिजिकली भी एवरीडे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैज़ बीन रिपीटेडली रीइंटरप्रेटेड and redefined. In some contexts, it is referred to as the provision of ambulatory or first level of personal health and care services. In other contexts, primary health can be understood as a set of priority health intervention for low-income population, also called selective primary health care. Others have understood primary health care as an essential component of human development, focusing on economic, social, and political aspects. So, primary health care क्या है? वही फिर से वो डिफाइन कर रहा है कि रीइंटरप्रेट करना, रीडिफाइन करना, और खुद के पर्सनल हेल्थ को ज़्यादा केयर करना। और ये मेजरली फोकस किया गया था लो इनकम पॉपुलेशन पे। और उसने बताया हमें कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसने फोकस किया इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑल एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हुए उन्होंने डेवलपमेंट किया। फॉलोइंग कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर। सो ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसे एक एक करके पढ़ते हैं हम। एजुकेशन ऑफ पीपल about prevailing health program and methods of preventing and controlling them. Next is promotion of food supply and proper nutrition. Third, adequate supply of safe water and basic sanitary. Fourth, maternal and child care and family planning. Next is immunization among major infectious diseases. Sixth, prevention and control of locally endemic disease. Seventh is appropriate treatment of common disease and injuries. And eighth is provision of essential drugs. So ये कुछ कंपोनेंट्स है जिन्हें इंक्लूड किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन देना, बेसिक सैनिटरी फैसिलिटीज़, मैटरनल चाइल्ड केयर, इम्यूनाइजेशन वगैरह, मतलब वैक्सीनेशन के बारे में बोला, जो कि हम डिसऑर्डर के वैक्सीन लेते हैं। फर्दर एंडेमिक डिजीज़ को प्रिवेंट करना, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो कि मेडिसिन उन्हें लग रहा है वो प्रोवाइड कराना, ये सब उसके अंडर आता था। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस. न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ कंडीशन ऑफ अ हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो ये हमें डेफिनेशन दिया गया न्यूट्रिशन स्टेटस का. सो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो.
ओके, सो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है? इट इज़ अ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस किया गया, मतलब हेल्थ के द्वारा यूटिलाइज कर, जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिया उसके हिसाब से आपकी हेल्थ बिल्ड हुई, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। जैसे हम बोलते हैं कोई फैट है, कोई थिन है, तो उसके हिसाब से हम न्यूट्रिशनल कंटेंट उसका निकालते हैं और उसके हिसाब से उसकी बॉडी डेवलप होती है। ऑफकोर्स जो आप खाओगे वही आपकी बॉडी में दिखेगा, तो वही न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बात कर रहा है। To determine the nutritional status of the individual, following information are required: kind of diet being consumed, type of illness if any, the person has suffered from, including observable signs of ill health, level of nutrients and other substances and the blood and urine. सो न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए ये सब डाटा हमारे पास होना चाहिए कि वो किस टाइप का डाइट ले रहा है, अगर वो बीमार है तो किस टाइप की बीमारी है उसे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी कितना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो डेली, उसके ब्लड काउंट्स वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह करना, हमें ये सब डाटा हमारे पास रहना चाहिए ताकि हम किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस निकाल सकें। इंटर रिलेशन बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स एंड गुड हेल्थ, nutrient is closely interlinked with health. If a person eats a right kind of food is a required amount, he or she will keep good health provided no other factor intervene. It must be emphasized that though good food is one of the crucial factor in ensuring health, it is not only the one. The food eaten must not only be nutritious, but it must be wholesome and clean, free from harmful germs. It is not so, the person eating the food will get ill even if the food is nutritious. So ये उसके बारे में बता रहा है कि न्यूट्रिशन और गुड हेल्थ दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है। सो ये बोल रहा है ठीक है, अगर हमने न्यूट्रिशनली फूड बनाया, पर ये भी हमें केयर करना चाहिए कि वो हाइजीनिक हो, मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया गया हो, हाँ जर्म से फ्री हो, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स उसे प्रॉपरली बॉडी में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो न्यूट्रिशियस तो है पर इट्स प्रिपेयर्ड इन बैड कंडीशन, so उसके कारण वो और इल हो सकता है। Malnutrition is an impairment of health resulting from deficiency, excess or imbalance of nutrients. So ये malnutrition का definition दिया गया है कि malnutrition क्या होता है, तो अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। In other words, malnutrition refers to both undernutrition and overnutrition. Undernutrition means a deficiency or lack of one or more nutrients, and overnutrition means or excess of nutrients. Both undernutrition and overnutrition results in ill health. So malnutrition मेजरली हमें क्या लगता है कि malnutrition मतलब कोई आदमी है जिसमें कोई डिफिशियंसी हो गई, पर ऐसा नहीं है। ये मेजरली होता है इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण, न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस की वजह से। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर एक्सेस भी न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो भी आपको मालनरिश्ड कहा जाएगा, और आपने लेस न्यूट्रिएंट्स या डिफिशियंसी है तो उसको भी मालन्यूट्रिशन बोला जाता है। तो वी शुड कंसिडर बोथ ओवर न्यूट्रिशन एज वेल एज दी अंडर न्यूट्रिशन, बोथ मीन्स द सेम माल न्यूट्रिशन। तो चैप्टर टू हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो वी विल एंड अप हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।